تو سب سے پہلے بات پیناما ہنگامے کی، جس میں سیاست گرم ہے۔ آج وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر مخالفین کو چیلنج دے دیا۔ کہتے ہیں مخالفین دھاندلی اور احتساب کی آڑ میں سازشیں کرتے ہیں۔ جے آئی ٹی کے پیچھے چھپنے کی بجائے میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ پہلے بھی کئی بار ہرایا، آئندہ بھی حریفوں کو شکست دیں گے۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں جے آئی ٹی کو بھی نہ بھولے۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 جولائی کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائے گی اور ہم داسو پاور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ کبھی آپ دھاندلی کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں، الیکشن جیت نہیں سکتے، بس صرف آپ سازش کرتے ہیں۔ مخالفین دھرنے دے سکتے ہیں، احتساب کی آڑ میں سازشیں کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن نہیں جیت سکتے۔ حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف کا اپوزیشن کو چیلنج۔ احتساب کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں، الیکشن جیت نہیں سکتے۔ 10 جولائی کو جے آئی ٹی کیا کرے گی اور حکومت کیا، وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا۔ 10 جولائی کو انہوں نے کہا جب رپورٹ جے آئی ٹی دے، اسی 10 جولائی کو انشاءاللہ داسو پاور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آسمان سر پر اٹھانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں کام سے کوئی نہیں روک سکتا، ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر بنی جے آئی ٹی کو کون نہیں جانتا، وزیر اعظم بھی اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ جھنگ میں اپنے خطاب میں میاں نواز شریف کو جے آئی ٹی کی یاد ستائی تو انہوں نے سامعین سے سوال کر دیا۔ جے آئی ٹی کو تو آپ جانتے ہیں؟ ہاں جی اسی جان گئے۔ جے آئی ٹی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہاں جی پہچان گئے۔ جو وہ کر رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دنیا والوں کو ہم جان گئے، پہچان گئے۔ جے آئی ٹی کو تو آپ جانتے ہیں؟ جان گئے، پہچان گئے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے پیناما لیکس کو افسانہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پیناما افسانے سے زیادہ لوگ وزیر اعظم نواز شریف کا اعمال نامہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، پیناما کیس میں عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوا قبول کیا جائے گا۔ ہے اور یہ اعمال نامہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس اعمال نامے کا اور پانامے کا جناب وزیر اعظم، یہ اعمال نامہ جس میں 168 ارب روپے اس قوم کے بچے، اور پاناما کا جو فسانہ جو ہے جو 2-3 ملین ڈالر یا 4 ملین ڈالر، عدالت عظمیٰ کا لیگل کیس، اس کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن قومیں کیا اس طرح بنتی ہیں یا بگاڑی جاتی ہیں؟ عمران خان بھی آج خوب بولے، شریف فیملی پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ کہتے ہیں لیگی رہنماؤں کی شکلیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان کے حالات برے ہیں۔ حکمران لیگ نے عدلیہ، فوج اور جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس بار سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تو عوام باہر نکلے گی۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور نون لیگ کی 4 مزید وکٹیں گرا دی۔ بڑی دیر سے میں اس وقت کی انتظار کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا شریف خاندان کا مافیا اس طرح جا کے اس کا جے آئی ٹی کے میں اس کا احتساب کیا جائے گا۔ قطری تلور مارنے آ جاتا ہے، حکمرانوں کو بچانے کے لیے نہیں آتا۔ نواز شریف کو ڈیالہ جیل میں دیکھ رہا ہوں، نتیہ گلی پریس کانفرنس میں کپتان کے وزیر اعظم کو باؤنسرز۔ وہ تلور مارنے تو آ جاتا ہے یہاں، لیکن اب ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ قطری کو پتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ پہلے 10 ارب کی پیشکش کی، پھر کیس دائر کیا۔ شریف فیملی کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کے حالات برے ہیں۔ عمران خان نے خادم اعلیٰ پر بھی کھل کر وار کیے۔ اصلیت ان کی یہ پہلی دفعہ لوگوں کو سامنے آئی ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں شہباز شریف میرے اوپر آپ عدالت میں لے کے جائیں، میں آپ کی ساری چیزیں گنواؤں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے معظم جتوئی، فیض وٹو، نعمان لنگڑیال، مظہر قریشی، ظفر لغاری اور شبیر لغاری کو پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دی۔
कोई सबूत है तो सामने लाओ, कोई इल्जाम है तो मुंह पर बताओ। JIT में पेशी के दौरान शरीफ फैमिली के हर मेंबर की यही दुहाई रही। कप्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान को हर इल्जाम की तफसील बता दी। बेचारे, क्या इल्जाम इनके ऊपर था? कोई चीज सामने ले आओ भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मरियम ने 93 में उसके नाम पे ये 4 महल्लात लिए थे तो मरियम के पास ना, वो बच्चों के पास तो पैसा ही नहीं था। इसका मतलब नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज ली बाहर जब वो प्राइम मिनिस्टर था मुल्क का। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या, कि हम पे इल्जाम क्या। 93 में अगर उन्होंने ये फ्लैट्स लिए, मरियम नवाज उनकी मालिका हैं, इसका मतलब कि नवाज शरीफ ने अपना पैसा उनके नाम पे किया है। मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें। 4 महल्लात अगर वो उसका मालिक है तो वो उसकी ओनरशिप की डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाता? 1.25 साल हो गए नहीं दिखाई। तो जनाब, नवाज शरीफ हो या इमरान खान, क्रिकेट से दोनों को मोहब्बत है। वजीर आजम अक्सर अपनी जवानी की यादें ताजा करते हैं तो अपने छक्के चौकों का जिक्र करना नहीं भूलते। उधर इमरान खान का इसरार है कि मियां साहब को क्रिकेट खेलना ही नहीं आती। सियासी लड़ाई में क्रिकेट का तड़का। मियां साहब की बैटिंग कहानी, कप्तान की जारहाना बॉलिंग, खूब चौके लगाए मियां साहब का दावा। 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। इमरान खान का बाउंसर, बोले नवाज शरीफ तो स्लो बॉल की मार थे। वो आहिस्ते आहिस्ते गेंद फेंकते थे, अपना पैर खड़ा होता था, वो आउट नहीं देता था, फिर अखबार में आ जाता था जी नवाज शरीफ ने। अच्छा, तब भी अखबारों को इस्तेमाल किया जाता था। वजीर आजम कहते हैं बाउंसर कभी नहीं छोड़ा। जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छक्का या चौका लगाऊं इसको। कप्तान बोले मियां साहब की विकेट उड़ाने वाली गेंद 9 बॉल बन जाती है। पनामा केस में खामोशी के बदले 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए 21 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हत्या के इज्जत के कानून के तहत दायर दावे में वजीर आला के वकील मुस्तफा रमदे ने मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि शरीफ बरादरान के एक दोस्त ने उन्हें पनामा मामले पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की है। वजीर आला पंजाब ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाया। जवाब न मिलने पर अब 10 अरब रुपए का दावा दायर कर दिया है। सेशन अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद इमरान खान को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ शुएब अली, न्यूज़, लाहौर। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से कबल मुलाकातों में तेजी आ गई है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जरूरत पड़ने पर तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम जुमे की रात सदर मुमलिकत से भी मिले। JIT का फैसला कुन मार्का। जुम जुम वक्त सिरकता जा रहा है, रहनुमाओं की अहम मुलाकातों में तेजी आती जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, कानूनी माहिरीन समेत अहम इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भरपूर सियासी महाजराई और जरूरत पड़ने पर तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रात गए सदर ममनून हुसैन से भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और JIT की कार्रवाई पर गौर किया गया। और नाज़रीन, अब अल्टीमेटम, बयान रिकॉर्ड करा दें वरना सुप्रीम कोर्ट से अहकाम जारी करवाए जाएंगे। JIT ने कतरी शहजादे को तीसरा खत अरसाल करके आखिरी मोहलत दे दी है। उधर हुसैन नवाज ने की दोहा में शाही खानदान से अहम मुलाकातें, लेकिन शहजादा हमद बिन जासिम से मुलाकात ना कर सके। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं JIT कतरी शहजादे का जाकर बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं कराती।
रिपोर्ट जमा कराने से कबल आखिरी मौका दे रहे। बयान ना रिकॉर्ड करवाने पर सुप्रीम कोर्ट से अहकाम जारी करवाए जाएंगे। JIT ने कतरी शहजादे को तीसरे खत में साफ साफ बता दिया। उधर दोहा में हुसैन नवाज ने शाही खानदान के अहम अफराद से मुलाकातें की, लेकिन कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से मुलाकात ना हो सकी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के बड़े साहबजादे दोहा से लंदन पहुंचे, जहां 2 से 3 रोज क़याम करेंगे, जबकि सैफुर रहमान भी कतर से लंदन पहुंच गए। ये काविश 2 साल पहले शुरू हुई और आज उधर वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुशर्रफ से बैरून मुल्क जाकर बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो JIT कतरी शहजादे का जाकर बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करती। पनामा हंगामा का फाइनल राउंड जारी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 10 जुलाई तक हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। क्या पनामा JIT की रिपोर्ट किसी तारीखी अदालती फैसले की बुनियाद बनेगी? आईनी और कानूनी माहिरीन की राय क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। इतनी उनकी पिटाई करेगी कि ये 2-2, 3-3 जनरेशन को कह जाएंगे कि सियासत की तरफ मुंह ना करना। सादिक और अमीन तो पाकिस्तान में वही है जिनका माँ बाप ने नाम सादिक और अमीन रख दिया। उम्मीद है सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड मुहैया कर देगी एक जजमेंट रेंडर करने के लिए। सारी की सारी गुफ्तगू ये नजर आ रहा है, उससे मुतरश्शे हो रहा है कि इन फैक्ट दे आर थ्रेटन्ड एंड दे फील कि देयर गेम इज ओवर। JIT बनाना अंडर आर्टिकल 184(3) एक बिल्कुल अछूती सी बात है। पाकिस्तान में क्या चले कि जब भी कभी कोई अदारा, कोई अफसर, कोई पुलिस, FIA कोई भी किसी मामले में तहकीकात करते हैं और जिसमें 2 फरीक होते हैं, तो वो लामाला दोनों में से कोई न कोई फरीक जो है वो मुतमईन नहीं होता। मतलब तो ये किसको सल्यूट किया जाए, किसको नहीं, एक बार फिर बहस चल पड़ी। मरियम नवाज के इस्लामाबाद की खवातीन एहलकारों को सल्यूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। JIT पेशी के मौके पर SP अरसला सलीम का मरियम नवाज को सैल्यूट, ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। और अब पेश है मरियम नवाज का खवातीन पुलिस एहलकारों को सैल्यूट। मरियम नवाज ने सैल्यूट की तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि हम बेटियों को सैल्यूट करते हैं, ओहदों को नहीं। तमाम सैल्यूट प्रोटोकॉल नहीं होते, इज्जत दिल से होती है। अगर कोई आपको इज्जत दे, आप भी उनको इज्जत दें। मरियम नवाज की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इससे पहले कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से सैल्यूट की तस्वीर पर भी सियासी हलकों में खूब बहस हुई थी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि 72 से 80 घंटों का खेल बाकी रह गया है। जब भी नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। कौम के सामने आकर नवाज शरीफ बताएं कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कराची में भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाने से बाज न आए। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अपने खिलाफ खुद साजिश की। कौम के सामने आके बताएं नवाज शरीफ साहब के साजिश कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 72 से 80 घंटों का खेल बाकी रह गया है। जब भी नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। 3 ओवर रह गए, 3 दिन है। 72 से 80 घंटों का मसला है। साबित हो जाएगा कि मरियम साहबा जो है वो मिनर्वा की बेनिफिशरी हैं या नहीं है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि दयानतदारी से कहता हूं कि रेमंड डेविस की किताब एजेंडे के तहत लाई गई। उन्होंने पेशगोई की कि जनरल इलेक्शन से कबल PSP और MQM को एक साथ देख रहा हूं। अभी अहम खबर आपको दें कि जर्मनी में होने वाले G20 इजलास पर यूरोप भर से आए लाखों लोग जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। हैम्बर्ग मैदाने जंग बन चुका है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को भी आग लगा दी है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की जा रही है और G20 इजलास में यूरोप भर से आए लोग एहतजाज कर रहे हैं। शहर मैदान जंग बन चुका, गाड़ियों को आग लगा दी गई। शहर में धुएं के बादल उठ रहे हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन और मिर्ची पाउडर का छिड़काव किया। पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होकर इजलास को भी रोकने की कोशिश की। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात की तब्दीली, तिजारत और उस जैसे दीगर बड़े मसाइल पर बातचीत हो रही है। न्यू न्यूज में इस ब्रेक के बाद बुरहान वानी शहर। वेलकम बैक।
अभी आपको बताएं कि सलामती पर, मुल्की सलामती पर सौदेबाजी नहीं होगी, कौमी सलामती को हर सतह पर मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक में ये फैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि सेनेट इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR भी शरीक थे। इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया कि अफगान सरहद के साथ बाड़ लगाने का अमल हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुल्की सलामती पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कौमी सलामती को हर सतह पर मुकद्दम रखा जाएगा। वजीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक में फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, वजीर दाखिला और मुशीर कौमी सलामती समेत सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। इजलास में मुल्की सलामती, इलाकाई मामलात और खारजा पॉलिसी के उमूर पर गौर किया गया और वजीर आज़म ने अफगान सदर और सऊदी फरमारवा से होने वाली मुलाकातों से भी शुरका को आगाह किया। इससे पहले वजीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। अभी आपको बताएं कि पाक फजाइया का प्रोजेक्ट आज़म लॉन्च कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स, ड्रोन और जदीद गाइडेड असलहा पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं हम जानेंगे अपने नुमाइंदे तलहा सईद कुरैशी से। तलहा, बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स सामने तक आई हैं और ये प्रोजेक्ट कब तक पाया तकमील को पहुंचेगा? जी बिल्कुल, पाक फजाइया की जानिब से प्रोजेक्ट अज़्म जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, जिनके साथ साथ ड्रोन्स और अनआर्म्ड एरियल सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ एडवांस गाइडेड वेपन्स जो हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाए जाएंगे। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो अभी तक रशिया, चाइना और सिर्फ अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये वो फाइटर तैयार हैं जो कि अगर आप रडार के ऊपर से भी गुजरे तो रडार जो है वो इन्हें मॉनिटर नहीं कर सकता। और ये टेक्नोलॉजी और ये जो प्रोजेक्ट है ये कम से कम भी इस डेकेड के अंदर ही जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी तलहा सईद कुरैशी, आपने तरीन तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की एक और कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम जमातुल अहरार को दहशतगर्द तस्लीम कर लिया। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी ने इन तंजीम के अकाउंट्स मुंजमद करने के अलावा असलहे की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी के मौके पर भारत के हाथ पांव फूल चुके हैं। काबिज फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। शहरों में जगह जगह नाके लगे हैं, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आजादी उरूज पर है और वो भरपूर अज़्म के साथ शहीद वानी की याद मनाने को तैयार हैं। मकबूजा वादी में आजादी के हीरो बुरहान वानी की शहादत की महक फैल चुकी है। वानी की शहादत ने तहरीक आजादी पर गहरे असरात छोड़े हैं। कश्मीरी अब सीना तान कर भारत के गासिबाना कब्जे को ललकार रहे हैं। 8 जुलाई 2016 शाम 6:45 पर वानी और उसके साथियों की शहादत ने कश्मीरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। मकबूजा वादी में तहरीक आजादी को मुकम्मल अवामी मकबूलियत हासिल है। सियासी सतह पर भारत नवाज धड़े की अवामी साख खत्म हो चुकी है। कश्मीरियों के दिल से मौत का खौफ निकल चुका है और वो भारतीय फौज के सामने सीना तान कर एहतजाज करते हैं। वानी की बहादुरी की वजह से कश्मीरी लड़कियां भी भारतीय फोर्सेस को आड़े हाथों ले रही हैं, जिनका एहतजाज आलमी सतह पर नोट किया गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दे रहा है। अमेरिका भारत की आंख में सीपैक खटक रहा है। भारत के सिखों के साथ नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी सिख सरापा एहतजाज बन गए। जुबैर साजिद ढिल्लू की ये रिपोर्ट।
वानी को शहीद किया तो हजारों लाखों बुरहान वानी पैदा हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा कश्मीर में सन्नाटा कर दिया। बुरहान वानी की शहादत के बाद एक नई तहरीक ने जन्म लिया और आज पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम बुरहान वानी रखा जा रहा है। कश्मीर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जिनके बेटे हो रहे हैं, ज्यादातर के नाम उन्होंने बुरहान रखा हुआ है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करके भारत में सिखों से इज़हार हमदर्दी की गई। सिखों ने हाथों में बैनर्स उठाकर पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जितनी सिख संगत है भारत में, उनके यहाँ पे आना चाहिए। सिख बरादरी ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ऐसी ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए। कैमरामैन हाफिज बाबर, आसिफ खान और साथी रिपोर्टर शोएब अली के साथ जुबैर साजिद, ढिल्लो, नियो न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 2 कार्रवाइयां की हैं। 27 किलो से ज्यादा सोना पकड़ लिया और स्मगलर्स ने सोना जूतों में छुपाया हुआ था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। ये जी पेशावर कस्टम हुक्काम ने बादशाहानी एयरपोर्ट पर कामयाब कार्रवाई की है और 3 मुसाफिर काशिफ जेब, मोहम्मद शकील और जाकिर खान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से 21 किलो सोना बरामद किया गया, जिसकी मालियत 8 करोड़ 6 लाख रुपए बताया जाता है। जी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कस्टम और कलेक्टर कुर्बान अली के मुताबिक सोना वो दुबई से पेशावर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे और सोना जूतों में छुपाया गया था। जी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसका रावी से कबल 9 घंटे कबल एक और मुसाफिर इस्माइल के कब्जे से पेशावर एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 2 कार्रवाई कर रहे थे। आलमजेब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। यह आपको बताएं कि PS 114 के ज़िमनी इंतखाब ने मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन की शिरकत ने इसे आम इंतखाबात का रंग दे दिया है। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और फारूक सत्तार के बाद शेख रशीद भी मैदान में उतर चुके हैं। नून लीग ने अली अकबर गुज्जर को तनहा छोड़ दिया, जबकि MKM हकीकी ने MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार कामरान टिसोरी की हिमायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। कराची में PS 114 के ज़िमनी इंतखाब को आम इंतखाबात का रंग चढ़ गया। इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर, हल्का फतह करने के लिए सियासी रहनुमाओं की जानिब से बुलंदो बांग दावे। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और फारूक सत्तार भी अपने अपने उम्मीदवारों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैदान में उतर आए। और तो और शेख रशीद भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत में निकल आए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने PS 114 के ज़िमनी इंतखाब में दबे लफ्जों में MKM के उम्मीदवार की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी, तहरीक इंसाफ के नजीब हारून, MKM के कामरान टिसोरी और नून लीग के अली अकबर गुज्जर समेत 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के बाद 9 जुलाई बरोज इतवार को 9,94,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। तो हल्का PS 114 की इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। पीपल्स पार्टी का पंडाल सज गया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। पंडाल में जश्न का समा है। आपको बताते चलें, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी वहां मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे ताकि मालूम कर सके कि आखिरी रोज के सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और सियासी सरगर्मियां उधर कैसी जारी हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान सुहेल, बताइएगा। देखिए, आज जो है वो इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। आखिरी रोज जो है वो तमाम सियासी जमातें जो कि इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, उनके जो है वो लीडरान जो है वो इस वक्त जलसे जुलूस कर रहे हैं। इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी के जलसे में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खुसूसी खिताब करेंगे। वो पंडाल में पहुंच चुके हैं। कारकुनों ने जो है वो उनका वालियाना इस्तकबाल किया, नारेबाजी की। कमरुद्दमान कायरा जो है वो इसका खिताब कर रहे थे। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़ियादत है वो यहाँ पर खिताब करेगी। उसके बाद आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी सईद गनी का लहू गरमाने के लिए, हल्के की आवाम का लहू गरमाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान।
रस्सी जल गई पर बल न गया। सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगतने के बाद भी निहाल हाशमी गैर मशरूत माफी मांगने पर तैयार न हुए। लीगी रहनुमा का कहना है कि अदालत तौहीन की निशानदही करे तो माफी मांगने को तैयार हूं। डॉलर बुरहान ने स्टेट बैंक को नया गवर्नर दे दिया, लेकिन डॉलर की परवाज न रुकी। रुपए के मुकाबले में 55 पैसे महंगा हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट में आज बेहतरी रही। KSE 100 इंडेक्स 399 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,222 पर बंद हुआ। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। अब रहिए न्यू न्यूज के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि ओगरा ने सानेहा अहमदपुर शर्किया की तहकीकाती रिपोर्ट पर फैसला जारी कर दिया। ऑयल कंपनी को हादसे का जिम्मेदार करार देते हुए 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 10 लाख और जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए अदा करने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑयल टैंकर हादसा केस में इदारों की गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। महकमा ज़राअत पंजाब ने किसानों को खबरदार किया है कि जड़ी बूटियां फसलों की फी एकड़ पैदावार में 45% तक कमी का बाइस बनती हैं। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि फसलों की मुनाफा बख्श काश्त में सबसे ज्यादा खतरा जड़ी बूटियों से है। जिन ज़राई वसाइल को जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें पानी, खुराक, रोशनी और जगह बहुत अहम है। इसलिए किसानों को चाहिए कि खेतों में उगने वाली जड़ी बूटियों का फौरी तदारुक करें। ले चलेंगे आपको कराची, जहां PS 114 में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। मैं हर तकरीर में कहता था कि ये ना वाजपेयी है और ना ही मनमोहन सिंह, ये मोदी है, मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है। इससे बचकर रहो, मगर ये दोस्तियां बनाने में लगे हुए थे, यारियां निभा रहे थे। मुझ पर तनकीद की जा रही थी कि मैं हिंदुस्तान से दोस्ती का मुखालिफ हूं या अमन नहीं चाहता। सुनो लोगों, मैं दोस्ती की मुखालिफ नहीं, मगर दोस्ती बराबरी कर सतह पर होनी चाहिए, इज्जत और वकार से होनी चाहिए। मैं अमन चाहता हूं, मगर निहत्ते कश्मीरियों के खून पर अमन कायम नहीं हो सकता। मियां साहब, दहशतगर्दी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हमारे बॉर्डर्स महफूज नहीं होंगे। आज अफगानिस्तान हमसे ज्यादा हिंदुस्तान से नजदीक है, ईरान भी नाराज है, और ये सिर्फ आपकी गलत पॉलिसीज और नाअहली की वजह से है। मैं 3 साल से कह रहा हूं कि मुल्क बगैर वजीर खारजा के चल रहा है। एक वजीर खारजा लगाओ, मगर आज तक कोई वजीर खारजा नहीं लगाया गया। मियां साहब, मैं पूछता हूं। बिलावल भुट्टो PS 114 में खिताब कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देख रही है न्यू पाकिस्तानियों।